دبئی میں وہ ماڈلنگ کر رہی ہے۔ میڈم آپ جانتی ہیں ہمارا معاشرہ کیا ہے اور دبئی میں لوگ کیا لینے جاتے ہیں، اور ایک بالکل لو لیول کا بندہ جب اپ ہوتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں تو وہ پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں وہ کس کمائی سے آتے ہیں اور وہ کیسی ماں ہے۔ میری بیٹی ہے کرن، اس کو دبئی اس نے شفٹ کیا ہے، اور جو ہے اس سے چھوٹی ہے کرن، اس کو اس نے ایک عثمان نامی بندے کو 20 لاکھ کے عوض بیچا ہے بغیر نکاح کے۔ مطلب ڈیورس یا علیحدگی کچھ ایسا ہوا ہی نہیں، اس کے بغیر ہی دوسرا نکاح ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ پروفیسر شیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروفیسر شیزہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے بے بس والد موجود ہیں جو کہ شعبے کے لحاظ سے تو قاری صاحب ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کافی پریشان ہے کہ ان کی جوان بیٹیوں کو جو ہے ان کی سگی ماں نے ان کو دندے پہ لگا دیا۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ یوز کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ ان سے کس قسم کا فحاشی کا کام کروا رہی ہیں ان کی سگی ماں ہو کے، اور ان کی کیا داستان ہے، آئیے ہم یہ قاری صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، آپ نے جو ہمیں بتایا کہ آپ کی بیٹیوں کو جو ہے وہ فحاشی کے دندے کے کام پہ لگایا گیا ہے، تو آخر یہ کیا کہانی ہے کہ یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ میم یہ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ 2008 میں ہمارے اوپر ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ درج ہوا جس کی وجہ سے مجھے جیل ہو گئی۔ اس مقدمے میں میرے ساتھ یہ میری وائف نسرین بھی ہے، اس کی ایک سسٹر ہے، اس کے والد ہیں، اور اس کے بعد میرا ایک بھائی ہے، ایک میری بھابھی ہے۔ ہمارے اوپر ایک بے بنیاد مقدمہ بنا جس کی وجہ سے ہمیں جیل ہو گئی۔ 2009 میں ہمیں سزا ہوئی 3 بندوں کو، جس میں نسرین کو، اس کی بہن کو اور اس کے باپ کو بری کر دیا گیا۔ ہم 3 بندوں کو سزا ہوئی۔ ہم نے اس کی ہائی کورٹ میں اپیل کی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہائی کورٹ نے ہمیں باعزت طور پہ بری کر دیا۔ معاملہ یہ اسی کے درمیان ہوتا ہے کو بیسیکل میں بند روڈ کا رہائشی ہوں، میرا وہاں پہ اپنا بزنس تھا ہوٹلنگ کا، تو میرا اپنا وہاں پہ گھر بھی تھا۔ میرے بچوں کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، بڑا بیٹا جو تھا وہ 14 سال کا تھا، اس کے بعد ایک بیٹی ارم وہ 12 سال کی تھی، کرن 10 سال کی تھی۔ اس ترتیب سے میرے 6 بچے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے میڈم، وہ میری وائف کچھ عرصہ میرے پاس آتی ہے، میرے ساتھ ملاقات بھی کرتی ہے، بچوں کو بھی ملاتی ہے، پھر ایک دم وہ اچانک ہی میرے ساتھ رابطہ چھوڑ دیتی ہے، مجھ سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ وہ میرے بھائی آتے ہیں، وہ میری سسٹریں ملاقات پہ آتی ہیں، انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی نے آپ کا ہوٹل بھی سیل کر دیا ہے، آپ کا گھر بھی سیل کر دیا ہے، اور پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ آپ نے کوئی ایسے سلسلے سے، کوئی رستے سے ان کو پیغام نہیں بھجوایا؟ میم ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں پہ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بالکل رابطہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کی والدہ، وہ ہمارے بھائیوں سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر ہیں۔ بڑی جدوجہد کے بعد جیسے میں 2014 میں جیل سے رہا ہو کے آتا ہوں تو میرا بڑا بیٹا شداد جو ہے اس کو کہیں سے خبر آ جاتی ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں۔ وہ مجھے ملنے کے لیے آتا ہے، اس نے مجھے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ میری والدہ نے ایک عارف نامی شخص سے نکاح کی ہے، میرے ماموں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملے ہیں، میرا جو نانا ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ایک عارف نامی بندہ ہے اس نے میری 2 بیٹیوں کے آئی ڈی کارڈ چینج کروائے ہیں جو میری۔ معذرت کے ساتھ، آپ کی مطلب ڈیورس یا علیحدگی کچھ ایسا ہوا ہی نہیں، اس کے بغیر ہی دوسرا نکاح ہو گیا؟ میرے سے کوئی اس نے طلاق نہیں لی، نہ میں نے اس کو طلاق دی ہے۔ اس نے پتہ نہیں کہاں سے ڈگری بنوائی ہے، مجھے کوئی نوٹس بھی نہیں ملا جیل میں، میرے پاس کوئی پیغام بھی نہیں آیا، میں بالکل اس معاملے میں بے خبر تھا۔ تو جیسے ہی میرے بیٹے نے مجھے سب کچھ بتایا کہ میری ایک اپنا جو میری بیٹی ہے کرن، اس کو دبئی اس نے شفٹ کیا ہے، اور جو ہے اس سے چھوٹی ہے کرن، اس کو اس نے ایک عثمان نامی بندے کو 20 لاکھ کے عوض بیچا ہے بغیر نکاح کے۔ تو جو دبئی میں جس کو شفٹ کیا وہ کس کام کے لیے کیا؟ وہ دبئی میں وہ ماڈلنگ کر رہی ہے۔ میڈم آپ جانتی ہیں ہمارا معاشرہ کیا ہے اور دبئی میں لوگ کیا لینے جاتے ہیں، اور ایک بالکل لو لیول کا بندہ جب اپ ہوتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں تو وہ پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں وہ کس کمائی سے آتے ہیں اور وہ کیسی ماں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ ماں پہ اعتبار کیسے کریں گے۔
मतलब गलत काम करने के लिए उन्होंने स्पेशली दुबई में जो है उसे भिजवाया। जी जी, इसी काम के लिए उसने दुबई में उसको भेजा है। और मुझे ये भी खदशा है, अब मेरी माशाल्लाह जो तीसरी बेटी है वो भी बड़ी हो गई है, उसका भी मुझे पता चला है, उसने आईडी कार्ड भी बनवाया है, उसका उसने पासपोर्ट भी बनवाया है। एक स्टूडेंट बच्ची जो पढ़ रही है उसकी पासपोर्ट बनाने की उसको क्या ज़रूरत थी। तो इस सिलसिले में जब मैं बात करता हूँ उनके घर पे, एक बार मैं गया हूँ तो 15 पे फौरी कॉल कर देती हैं और पुलिस उसके साथ मिली हुई है। तो मैंने जैसे ही वो मेरा बेटा बाहर मुझे उससे मिलने आता ना, उसने मुझे बताया कि मेरी मम्मा ने ये मामलात किए हैं। तो मैं अपने बेटे के साथ गया। उस वक्त इनकी रिहाइश थी अल्लामा इकबाल टाउन के इलाका सादात कॉलोनी में। मैं जैसे ही वहाँ पे जाता हूँ तो उसने 15 पे कॉल कर दी और पुलिस मौके पे आ गई। मैंने पुलिस को पूरी डिटेल बताई कि मैं जेल चला गया था, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, तो जिसकी वजह से मैं बाइज्जत बरी होके आया हूँ। अब मुझे ये बताए मेरा घर किधर है, मेरा होटल किधर है, मेरे बच्चे किधर हैं, मेरे घर का साजो सामान किधर है, वो मेरा जेवर किधर है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो खाली हाथ बैठा हूँ। मैं तो जद्दोजहद कर रहा हूँ, वो सब कुछ मेरा माल भी खा गई, मेरा मकान भी खा गई, मेरा होटल भी खा गई, मेरा जेवर भी खा गई और मेरे बच्चों को भी बेच दिया। अच्छा, इस तरह कि जैसे आपके साथ इतना कुछ हुआ, वो इतना कुछ उन्होंने कर लिया, तो आपने इस मामले को पुलिस में, कोर्ट कचहरी में क्यों नहीं पेश किया? मैंने मैडम इसके ऊपर दरख्वास्त दी है थाना कोट लखपत लाहौर में। वहाँ पे SHO लगा हुआ नईम बाजवा। नईम बाजवा से मुझे बिल्कुल इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक मुलजमा वो अपने साथ बिठाता है कुर्सी पे, तो मुझे नईम बाजवा से इंसाफ कहाँ से मिलेगा। उसने 5 लाख रुपए दिया है और उसने अप्रोच भी कराई है, सिफारिश भी कराई है। उसके अमले वाले बंदे मुझे कह रहे हैं कारी साहब हम बेबस हैं, हमारे साहब ने ताल्लुक अपना, इनको कॉलें भी आई हैं और इन्होंने पैसे भी लिए हुए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपका काम नहीं होने वाला। मैं मैडम जी IG के पास गया हूँ, मैं DIG के पास गया हूँ, मैं CCP लाहौर के पास गया हूँ, मैं सेशन कोर्ट में गया हूँ। इसके अलावा आप मुझे बता दें मैं इंसाफ के लिए कहाँ जाऊँ। तो किस किस्म की मुश्किलात आपको आ रही हैं जो आपका ये केस नहीं सुना जा रहा? आप सगे बाप हैं, वो सगा बाप हो के भी जो है अपने बच्चों के लिए प्रूफ देने पड़ रहे हैं, और माशाल्लाह से आप कारी साहब हैं और आपकी बेटियां जिस तरह धंधे पे लगी हुई हैं, आप उनको बचा नहीं पा रहे। तो क्या मुश्किलात आपको ये सारे चक्कर में आ रही हैं? मेरी मुश्किलात बढ़ाने के लिए इसमें पुलिस का ज़्यादा किरदार है। अगर पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आए तो ये मेरा मामला एक दिन में ही हल हो सकता है। इस पे IG साहब एक्शन लें, इस पे CCP साहब एक्शन लें, इस पे SP साहब एक्शन लें, तो मेरा ये मामला इतना उलझा हुआ नहीं जितना पुलिस ने उलझा के रख दिया है। और ये सीधा सीधा मेरा जो पर्चा बनता है, FIR बनती है, और पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऐब छुपाने के लिए जो उन्होंने पैसे लिए हैं उसको हज़म करने के लिए वो मेरे क्रिमिनल मैटर को वो सिविल बनाने की कोशिश कर रही हैं। 420 68 71 का उनके ऊपर मुकदमा बनता है। मैंने ID कार्ड उनके सामने रख दिए हैं। ID कार्ड जो है वो इतनी बड़ा प्रूफ है, और बल्कि मैं कहता हूँ ये कानून के मुंह पे तमाचा है। जो कागजात सारे आपके कंप्लीट और आपके पास मौजूद हैं? जी जी, कागजात मेरे पास सब मौजूद हैं। मैंने ये उनके साथ, उसने बल्कि मेरे साथ थाने में बैठ के एक एग्रीमेंट भी किया था कि जिसमें उसने लिखा है कि मेरे कारी मंशा से 6 बच्चे हैं और वो मेरे ही पास हैं। उसमें बाकायदा उसने, मैं आपको दिखाता हूँ उसके वो डॉक्यूमेंट वगैरह भी, और उसने तरतीब के साथ मेरे बच्चों के नाम भी दर्ज करवाए हैं। तो जब मैं अपने बच्चियों की वल्दियत के बारे में पूछता हूँ तो फिर कहती मैं आपको प्रूफ दूंगी, बाद में दूंगी। मैंने अब्दस्तार एक नामी बंदा है उसको ले पालक कर दी। मैडम मेरा यहाँ पे ये सवाल है, अगर आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास गुर्बत थी, आप उनको नहीं पाल सकती, आप छोटे बच्चे ले पालक करती ना। आपने मेरी जवान 2 बेटियों को सिर्फ और सिर्फ बुराई के लिए और बेहयाई के कामों के पे लगाने के लिए और अपनी हवस जो है पैसे के लिए, लालच के लिए, तमा के लिए, अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, अपने माँ बाप को हज उम्रा कराने के लिए वो मेरी बेटियों को गलत इस्तेमाल किया। नाजरीन, आप इनकी जो पेपर्स वगैरह हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, आप अपनी जायदाद वगैरह को और उन चीज़ों को वापस लेने के लिए तगदो कर रहे हैं, या अपनी औलाद को भी जो है वो आप वापस लेना चाहते हैं? मैं मैडम, मुझे अपना जायदाद की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मुझे बच्चों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ, मैं कुरान का कारी हूँ, मैं मुअल्लिम हूँ, मैं ख़तीब हूँ। मैं प्रॉपर जब वो मिंबर रसूल पे बैठता हूँ तो मेरे अंदर के तासरात क्या होंगे। जब मैं वहाँ पे औलाद के जो है वो अपना फ़ज़ाइल बयान करता हूँ तो मुझे अपनी बच्चियाँ याद आ जाती हैं। मुझे अपनी बच्चियों का किरदार जो है ना वो मुझे अंदर से अंदर खा रहा है। और मेरी बीवी ने मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया है? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हवस के लिए,
तमा के लिए, लालच के लिए, और उसने ये किरदार किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाली नस्लें माँओं पे कैसे इतबार करेंगी। सगी माँ अगर सुतीली होती, वो ये करती तो समझ आता, और एक सगी माँ जो है उसने नागन से बढ़कर किरदार अदा किया है। तो आप किस किस्म की तवक्को रखते हैं रिज़ल्ट की, कि आप मीडिया पे क्यों आए, कि आपको क्या चाहिए? पुलिस से कुछ इंसाफ चाहिए या अपनी बीवी से इंसाफ चाहिए था? मीडिया पे आपके आने का क्या मकसद था? मेरा मैडम आने का एक ही मकसद है, मेरी आवाज़ मेरे बच्चों तक पहुँचे। मेरे बच्चों को डराया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है, उनके जो मामू हैं वो कहते हैं वो आपको कत्ल कर देंगे, वो आपको मार देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपना ऐब छुपाने के लिए अब मेरे बच्चों को वो यरगमाल भी बना रहे हैं। मेरे बच्चों को उन्होंने बहकावे में भी डाला हुआ है ताकि किसी तरीके से इनको उनकी असलियत सामने ना आ जाए, और उनका जो बदकार चेहरा है ना, जिसके पीछे एक शैतान छुपा हुआ है और एक माँ के पीछे उसकी जो असल रूह है, वो मैं सामने करना चाहता हूँ। और मैं बेताब हूँ अपनी औलाद को राह रास्त पे लाने के लिए। और मेरे बड़ा जो बेटा है माशाल्लाह शहजाद, अच्छा खासा ज़हीन था, उसने उसका दिमाग मौफ करने के लिए उसको नशे पे लगाया हुआ है ताकि उसको भी सोच ना आए, वो हमारे बारे में सोच ना सके, और हमारे ऊपर कोई मामलात वो किसी भी तरीके से वो अपने बाप वाला जो खून है, जो उसके अंदर जज्बा है, उसको वो ख़त्म करने के लिए उसने उसको भी नशे पे लगा दिया है। जी नाजरीन, आपने कारी साहब की कहानी सुनी है, और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में जो है वो पहले तो सुतीली माँओं के जुल्म नज़र आते थे, अब सगी माँ जो है वो अपनी बेटियों से गलत फाशी के और धंधे के कामों पे काम करवा रही है। और ये सगे बाप हो के जवान बच्चे हैं लेकिन उनको जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे, उनको बचा नहीं पा रहे। तो अगर इनके औलाद इनका पैगाम सुन रही है तो वो मैच्योर है, बालिग है, वो ज़रूर अपने बाप की इज़्ज़त को जो है वो कायम रखें और इनसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।